Hello everyone, welcome to Unacademy. Welcome to Unacademy semester exam. Unacademy, let's crack it. Crack GATE and ESE with India largest learning platform. Get plus subscription and access unlimited live and recorded courses from India-based educators. Myself Akash Jaiswal, I have completed my MTech in manufacturing engineering, 4 times GATE qualified, 3+ year of GATE teaching experience, and also mentored 10,000 plus aspirants for GATE. My area of expertise: manufacturing engineering, industrial engineering, strength of material, machine design, and also heat transfer. Install Unacademy learning app from Play Store. And what you will get in Unacademy platform: daily live classes, structure courses, live tests and quizzes, and unlimited access. And in Iconic subscription, take your GATE and ESE preparation to next level with personal coach. So in Iconic subscription, personal coach are provided, study tracker, mains question and answer practice, and all benefits of Plus. And here, Plus subscription, your access to the best of Unacademy. So in Plus subscription, daily live classes are provided, structure courses, live tests and quizzes, and unlimited access. And connect India topmost Unacademy educators. For GATE and ESE aspirants, batches and year-long courses: ECE, General Aptitude, Chemical Engineering, Mechanical Engineering, CS&IT, Instrumentational, Mathematics, Electrical, Civil, Production and Industrial Engineering. So all branches are covered in Unacademy platform. So here, benefits of Plus. India-based educators are provided interactive live classes, structure courses and PDFs, and live tests and quizzes. So these things are important for Plus subscription and benefits of Plus. And also Iconic. So in Iconic subscription, Plus subscription are provided plus extra personal coach, personalized test analysis, study planner, and preparatory study materials. These things are also provided in Iconic subscription. Okay, so that Iconic subscription is very important for every GATE and ESE aspirants. For Plus plan, minimum 12 months, 30,250, and after using my code AKAS10, to get 10% instant discount, and it will get 27,225, and 18 months 38,500, and after using my code it will get 34,650, and 24 months 44,000, and after using my code it will get 39,600. So use my code AKS10 to get 10% instant discount for Plus plan. And Iconic plan, minimum 12 months 50,250, and after using my code AKAS10 to get 10% instant discount, and it will get 45,225, and 24 months 74,000, and after using my code it will get 66,600. So use my code AKS10 to get 10% instant discount for Iconic plan. So enroll today. Let's crack GATE and ESE. Subscribe Unacademy semester exam channel and use my code AKS10 to get 10% instant discount for all the courses like Plus and Iconic plan. दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपॉर्चुनिटी आफ्टर गेट एग्जाम फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स. ओके, सो अपॉर्चुनिटी आपको क्या होती है गेट के बाद? तो अगर बात करें हम लोग गेट एग्जामिनेशन, ओके, गेट एग्जाम के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या होगी, क्लियर है? तो अगर आप गेट एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, गेट एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है. सो 2 ऑप्शंस हैं. अगर उस ऑप्शन की मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑप्शन आपका एमटेक, ओके, एमटेक एंड पीएचडी करने का है, ठीक है. नेक्स्ट क्या है? पीएसयूस, ओके, क्लियर है. सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, सो एमटेक एंड पीएचडी, क्लियर है. तो अगर आपका लोअर मार्क्स आता है, ठीक है, अगर बात करें हम लोग लोअर मार्क्स, तो लोअर मार्क्स आ रहा है तो टेंशन लेने की बात नहीं है. सिंपली आपको क्या मिलेगा? एनआईटी और स्टेट
स्टेट लेवल, ओके, स्टेट लेवल कॉलेजेस आपको यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। और अगर मार्क्स मीडियम होती हैं तो ट्रिपल आईटी भी मिलता है, और कुछ बेटर एनआईटी आपको एमटेक के लिए ऑफर मिलती है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग मीडियम, अगर बात करें, ठीक है, लाइक 50 to 65 मार्क्स, 50 to 65 मार्क्स की अगर बात करें तो यहाँ पर बेस्ट एनआईटी, जो टॉप एनआईटी होते हैं, ट्रिपल आईटी, ओके, ट्रिपल आईटी यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हायर मार्क्स लाइक मोर देन 65 प्लस, तो यहाँ पर आपको आईआईटी मिलते हैं, ठीक है। आईआईटी, तो यहाँ पर क्या है, लोअर मार्क्स मीडियम और 65 प्लस, तो यहाँ पर आपको एमटेक करने का एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, गेट एग्जामिनेशन के थ्रू, जहाँ एमटेक के लिए काफी एनआईटीज, आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज, ओके, और स्टेट लेवल एग्जामिनेशन जो होते हैं, स्टेट लेवल के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, वहां पर आपको एमटेक करने का ऑफर मिलेगा। प्लस ऑल्सो अगर बात करें पीएचडी, तो ध्यान से समझना, पीएचडी, तो पीएचडी के लिए भी गेट स्कोर कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, गेट स्कोर कार्ड यहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी पीएचडी एग्जामिनेशन, ठीक है, पीएचडी के लिए। बात करते हैं पीएसयू, तो काफी मैकेनिकल में पीएसयू होते हैं, लाइक बार्क की अगर बात करें, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, एनपीसीआईएल, ओके, एनएलसीआईएल, आईओसीएल, ओएनजीसी, एनटीपीसी एंड एक्सेट्रा। काफी, अगर मैं पीएसयू की बात करूं तो काफी पीएसयू होते हैं। तो अगर आप गेट एग्जाम देते हो तो पीएसयू के जो भी कॉल लेटर होंगे वो आपको मिल जाते हैं, क्लियर है। इंटरव्यू होता है और उस इंटरव्यू के थ्रू आप पीएसयू ज्वाइन कर सकते हो। और भी कुछ एग्जाम्स होते हैं अदर पीएसयू के, ठीक है, जो अदर पीएसयू होते हैं, अदर पीएसयू, तो अदर पीएसयू के एग्जाम भी होते हैं, ठीक है। तो अगर अदर पीएसयू के एग्जाम होते हैं तो सिलेबस जो होता है, ठीक है, सिलेबस फुल गेट एग्जामिनेशन का सिलेबस होता है, तो काफी आप लोग को हेल्प मिलेगा गेट एग्जाम को अगर आप प्रिपेयर करके चलते हैं तो। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर ऑफर है एमटेक, पीएचडी, नेक्स्ट पीएसयू एग्जाम और पीएसयू, और अगर बात करें पीएसयू एग्जाम, तो यहाँ पर आपके टोटल कंप्लीट होते हैं। तो एवरी गेट एंड जो भी एसी के एस्पिरेंट्स होते हैं वो काफी एमटेक की अपॉर्चुनिटी देखते हैं, पीएचडी लाइक पीएसयू ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर पीएसयू के अदर एग्जाम्स होते हैं उसे भी क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्लियर है, ठीक है। बोलो यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो बोलोगे सर एमटेक, तो एमटेक अगर आप ज्वाइन करते हो, लोअर मार्क्स अगर आ जाता है, सपोज मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात करता हूँ जिसमें क्या है मार्क्स कम हो रहा है, तो वो एनआईटी एडमिशन ले लेता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनआईटी, तो अगर वो एनआईटी एग्जाम में अगर क्या करता है, एडमिशन लेता है, तो फर्स्ट थिंग की वहाँ अभी जो अकॉर्डिंग टू जो एमएचआरडी है, 12,400 पर मंथ, ओके, सो 12,400 पर मंथ, तो ये स्टाइपेंड आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। 2 इयर्स कोर्स है, तो 2 इयर्स कोर्स का मतलब क्या है कि आप साथ में यहाँ 12,400 तो आपको मिल रहा है स्टाइपेंड, प्लस 2 इयर्स कोर्स में आप क्या कर सकते हो, स्टडी, अपना एमटेक की स्टडी भी कर सकते हो और अदर एग्जाम की भी स्टडी कर सकते हो। सो एनआईटी से आप अगर एडमिशन लेके अगर चलते हैं आगे, तो कोई ना कोई आपको गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो गवर्नमेंट एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो यहाँ पर बेस्ट होगा, ठीक है। तो लोअर मार्क्स में भी बेस्ट हो सकता है, उसका रीजन क्या है कि आप सिंपली एनआईटी में एडमिशन ले लो, क्लियर है। एनआईटी में एडमिशन लेने पे आपको वर्कलोड नहीं हो सकता, वर्कलोड इन द सेंस मीन्स फैमिली प्रेशर। क्यों? क्योंकि आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है 12,400, ठीक है, तो आपका जो भी है वर्क हो जाएगा सिंपली। और 2 इयर्स में आप प्रॉपर एक प्लानिंग कर लो, मुझे 2 इयर्स में कोई भी एग्जाम फाइंड करना है, करना है, ठीक है। बोलो, तो अगर आप 2 इयर्स में स्टडी अच्छे से करते हो तो आपको एक गवर्नमेंट जॉब पक्का मिल जाता है, ठीक है। काफी मैंने देखा है स्टूडेंटों का कहना है सर 2 इयर्स में हमने स्टडी किया और गवर्नमेंट जॉब हमने अचीव कर लिया। बात समझ में आ रहा है? और अगर बात करते हैं अगर आईआईटी में, तो आईआईटी के भी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर आईआईटी में जाते हैं तो वो भी क्या करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम के
प्रिपरेशन करते हैं, प्लस वहाँ क्या होता है, ईएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, लाइक ईएससी, आईएएस। ओके, काफी एग्जाम्स की वहां भी प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ से ऑफर भी होता है पीएचडी, पीएचडी की बात करते हैं। ठीक है, तो आईआईटी और एनआईटी के बाद पीएचडी का भी ऑफर यहाँ पर आपके पास होता है। सपोज अगर आप गवर्नमेंट जॉब 2 इयर्स में नहीं ले पाए, इन केस, ठीक है, तो 2 इयर्स में, आफ्टर 2 इयर्स आप क्या करोगे, पीएचडी में एडमिशन ले लो। ठीक है, पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। और पीएचडी में अगर बात करें एनआईटी के थ्रू, तो 30,000, 31,000 समथिंग, ठीक है, अप्रोक्स, ये आप लोग को पर मंथ, मैं पर मंथ की बात कर रहा हूँ, इतना आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है पीएचडी में। क्लियर है पॉइंट्स? ओके, तो ये है इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, जो अपॉर्चुनिटी है, वो क्या है, पीएसयूस में भी आ सकते हो आप लोग। ठीक है, और पीएसयूस एग्जाम्स भी आप क्लियर कर सकते हो गेट के थ्रू, और सिंपली एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए काफी अपॉर्चुनिटी है, टेंशन लेने की बात नहीं है गेट एग्जामिनेशन के बाद। सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को क्या करना है, ब्रांचेस, ब्रांच के अकॉर्डिंग, ठीक है, ब्रांच के अकॉर्डिंग एमटेक चूज करना है। ओके, तो अगर आप ब्रांच की बात करें, सो ब्रांच जो होता है, अगर मैं बात करूं थर्मल, थर्मल इंजीनियरिंग, ओके, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, डिजाइन से होगा। ठीक है, डिजाइन से आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू कट ऑफ, और आप देख सकते हो आपका इंटरेस्ट किस में है। सो थर्मल, मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन, ओके। एंड और भी क्या होते हैं यहाँ पर, और भी अगर आप बात करें फाउंड्री एंड फोर्स, ठीक है, फाउंड्री एंड फोर्स से भी आप लोग कर सकते हो, ये एक मैन्युफैक्चरिंग का ही पार्ट होता है। ठीक है, और एफएम प्लस हीट ट्रांसफर से भी एमटेक होता है। ठीक है, एफएम और हीट ट्रांसफर से होता है, मेटलर्जी से होता है, मेटलर्जिकल साइंस से भी होता है। क्लियर है? ओके, तो काफी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होगा। तो जब भी आप गेट क्वालिफाई करते हैं, जब भी गेट की एग्जाम क्वालिफाइड करते हैं, तो अगर आप एनआईटीज के लिए अपेयर हो रहे हो या फिर आईआईटीज, तो अगर आप एनआईटी की बात करते हैं, तो एनआईटी के लिए सीसीएमटी, सेंट्रलाइज काउंसलिंग फॉर एमटेक, ओके, सीसीएमटी का काउंसलिंग आपको देना होगा। और आईआईटीज के लिए प्रॉपर वे में आपका क्या होता है, फॉर्म रिलीज होता है। ओके, फॉर्म रिलीज होगा। ठीक है, तो फॉर्म रिलीज होता है, दैट मीन्स आप फॉर्म भर सकते हो और आईआईटीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जिस आईआईटीज, सभी आईआईटीज के अलग अलग फॉर्म होते हैं, सभी को आप फिल कर दो। ठीक है, क्लियर है? और उसके अकॉर्डिंग वहां से आपको कॉल आएगा कि आपका कट ऑफ इतना है, तो कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट किया गया है, आप कट ऑफ क्लियर कर चुके हो, सो इंटरव्यू के लिए यहाँ पर इनवाइट किया जाता है। आईआईटीज में इंटरव्यू होता है, और यहाँ पर नो इंटरव्यू, डायरेक्ट एडमिशन। सो एनआईटीज में डायरेक्ट सीसीएमटी से काउंसलिंग होगा, और सीसीएमटी के थ्रू आपको कॉलेज प्रोवाइड किया जाता है डायरेक्टली। बट आईआईटीज में फॉर्म फिल करने के बाद आईआईटी प्रोवाइड नहीं होता। ठीक है, क्या होता है, इंटरव्यू होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये होता है रूल। नेक्स्ट, अगर बात करें हम लोग पीएसयूस एग्जाम, या फिर पीएसयूस की अगर मैं बात करूं, तो गेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद पीएसयू के भी फॉर्म रिलीज होते हैं। तो ये पीएसयूस के जो फॉर्म होते हैं, ये बिफोर गेट एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, और आफ्टर गेट, जैसे गेट रिलीज होता है, रिजल्ट, गेट रिलीज कर देता है रिजल्ट, उसके बाद क्या होगा, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। बात समझ में आ रहा है? तो आफ्टर गेट एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट डिक्लेरेशन, आपके पास इंटरव्यू कॉल। तो यहाँ पर प्रोसीजर क्या होता है, यहाँ जीडी होता है, रिटर्न भी होता है। ठीक है, किसी किसी पीएसयूस में रिटर्न ओनली होता है, जीडी नहीं होता। ठीक है, और किसी पीएसयूस में जीडी होता है, रिटर्न नहीं होता, तो इसलिए ऑब्लिक का साइन लगा दिया हूं, जीडी और रिटर्न। ठीक है, सो जीडी एंड रिटर्न, फिर इंटरव्यू। ओके, इंटरव्यू,
क्लियर है पॉइंट्स? तो अगर मैं सभी को एक पॉइंट्स लेके चलूं कि अगर किसी पीएसयू एग्जाम के लिए, ठीक है, अगर आप किसी पीएसयू एग्जाम के लिए बात करते हैं तो फर्स्ट रिटर्न और नेक्स्ट होता है जीडी, ग्रुप डिस्कशन, ओके, एंड नेक्स्ट इंटरव्यू। क्लियर है? तो यहाँ वेटेज की अगर बात करें तो गेट का जो वेटेज होता है, जो गेट का वेटेज होता है वो 75 मार्क्स का होता है, आउट ऑफ 100। 75 मार्क्स में 70%, 75 और 70% अप्रोक्स अगर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ऑन एन एवरेज 70, ठीक है, 70%, जो रिमेनिंग 30% जो होता है वेटेज, वो इस पे डिपेंड करता है। क्लियर है पॉइंट्स? सो यहाँ पर जो 10% होता है रिटर्न, 10% होता है ग्रुप डिस्कशन और 10% होता है इंटरव्यू, तो टोटल हो गए 100%, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। 70% वेटेज होता है गेट की स्कोर पे, आप जितना अच्छा गेट में स्कोर करोगे उतना ही आपको 70% में परसेंटेज अचीव हो जाएंगे। और रिमेनिंग 30% में इंटरव्यू का 10% होता है, जीडी का 10% और रिटर्न का 10%। क्लियर है पॉइंट्स? ओके, तो काफी अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली आप यहाँ पीएचडी भी एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन होता है थ्रू गेट, डायरेक्ट पीएचडी, ओके। तो ये किसके थ्रू? थ्रू गेट होता है। तो आप डायरेक्ट पीएचडी भी कर सकते हो, कहाँ से? आईआईटी से, ओके। तो गेट में अगर अच्छे मार्क्स होंगे तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर दो पीएचडी के लिए, और वहां पर आप डायरेक्टली पीएचडी अप्लाई कर दो, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होता है? गेट के थ्रू नीति मुंबई, ओके। तो नीति मुंबई से भी आपको काफी अपॉर्चुनिटी होता है। नीति मुंबई से भी आप क्या कर सकते हैं? एमई, ओके, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कर सकते हैं एमई यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ भी काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। यहाँ भी स्टाइपेंड्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं नीति मुंबई, तो आप लोग सर्च कर लेना, ठीक है। इसके भी फॉर्म फिल कर सकते हो और यहाँ से आप पीएचडी भी कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट्स? सो नीति मुंबई से आप एमई भी कर सकते हैं और पीएचडी भी कर सकते हैं। तो काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो अकॉर्डिंग टू गेट मार्क्स आप जा सकते हो। तो आपको यहाँ पर मैं अकॉर्डिंग टू गेट मार्क्स की बात कर रहा हूँ, तो ये एनआईटीज, आईआईटीज, पीएसयूस, ओके, एनआईटीज, आईआईटीज, पीएसयूस और पीएसयूस एग्जाम, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको ऑप्शन मिलता है। और एग्जाम क्या है? गेट ओनली, ठीक है। तो गेट एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो सिंपली आपको एनआईटीज, आईआईटीज, पीएसयूस और पीएसयूस एग्जाम को इजीली आप तैयार कर सकते हो और क्रैक कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है? ओके, सो लेट्स क्रैक इट। लेट्स क्रैक इट एंड गुड लक to all aspirants. Thank you so much.